Good morning, students. Students, in last session we discussed public finance and one component of public finance, that is public expenditure. Now public revenue. In last session also we discussed the public revenue. So public finance is the study of the principles of income and expenditure of government at central, state, local government. So public expenditure and public revenue are the parts of public finance. Already we discussed this in last session. Public revenue means aggregate collection of income with the government through various sources. So public revenue means government's income from all sources. Public revenue holds the payment position in the study of public finance, which is part of study of economics. The necessity of revenue arises due to public expenditure. So because of expenditure, government require revenue, and there are various sources of public revenue. In last session, students, we discussed one source of public revenue, that is tax. And we discussed there are two types of taxes, direct and indirect taxes. So tax is one of the important source of public revenue. But along with tax, there is one more source of revenue, is non-tax revenue. मीन्स गवर्नमेंट को टैक्स के अलावा दूसरा भी एक सोर्स है कि जो सोर्स से गवर्नमेंट इनकम अर्न कर सकती है, दैट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉन टैक्स रेवेन्यू. सो वी ऑलरेडी डिस्कस टैक्स रेवेन्यू. देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. There are two types of direct taxes, income tax and wealth tax, and there are one type of indirect tax, that is goods and services tax, which is also known as GST. So non-tax revenue. Public revenue received by the government administration, public enterprises, gifts and grants etc. are called as non-tax revenue. These sources are different than taxes. So public revenue received by the government administration, public enterprises means government की जो भी business है, हाँ, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स की सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को जो गिफ्ट एंड ग्रांट्स, या फिर स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट को, नगर पालिका, महानगर पालिका एंड जिला परिषद. सो स्टेट गवर्नमेंट ये लोकल गवर्नमेंट्स को जो गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स प्रोवाइड करती है, या फिर कोई भी फॉरेन अथॉरिटी से सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ गिफ्ट्स और ग्रांट्स मिलता है. ऑल दिस इंक्लूड इन नॉन टैक्स रेवेन्यू. सो दिस सोर्सेस आर डिफरेंट दैन टैक्सेस, बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस दैट कि टैक्स जो है वो हर एक टैक्स पेयर को कंपलसरी गवर्नमेंट को देना ही है. वट इट सो कि और इसके बदले में गवर्नमेंट को, टैक्स पेयर को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है. बट नॉन टैक्स रेवेन्यू इज ऑलमोस्ट डिफरेंट फ्रॉम दिस टैक्स रेवेन्यू. So students, sources of this non-tax revenue, so sources of public revenue, tax and non-tax, we already discussed tax revenue. So now concentrate on non-tax revenue. Students, there are 7 sources of non-tax revenue. There are 7 sources of non-tax revenue. First one is fees. Second one is prices of public goods and services. Third one is special assessment. Next one is fines and penalties. Next, gift, grants and donations. Next one is special levies, and next one is borrowing. So these are the 7 sources of non-tax revenue. ये 7 अलग अलग sources से गवर्नमेंट को रेवेन्यू और इनकम मिलता है. Now let's discuss these 7 sources. And the first non-tax revenue is fees. A tax is paid compulsorily without any return service.
वी ऑलरेडी डिस्कस दिस कि टैक्स इज कंपल्सरीली पेड एंड विदाउट एनी रिटर्न सर्विस. गवर्नमेंट को टैक्स के बदले में टैक्स पेयर को कोई भी सर्विस पे नहीं करनी है. बट फी is paid in the return for certain specific services rendered by the government. So fees is paid in return of services. कोई एक सर्विस गवर्नमेंट सिटीजन्स को प्रोवाइड कर रही है और वो सर्विस के बदले में गवर्नमेंट सिटीजन से फीस लेगी. अगर वो सर्विस सिटीजन कंज्यूम कर रहे हैं तो ही उनको वो फ़ी देनी है. ये कंपलसरी गवर्नमेंट को नहीं देना है. अगर वो सर्विस कंज्यूम की देन ओनली सिटीज़न को वो फ़ी पे करनी है. फॉर एग्जांपल एजुकेशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी. रजिस्ट्रेशन अगर कोई एक प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन किया तो ही आपको वो फ़ी पे करनी है. अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो फिर आपको वो फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है. बर्थ के बाद या फिर मैरिज के बाद या फिर डेथ के बाद हर एक को लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ जो है वहाँ पे एनरोलमेंट करना, रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है. तो ये आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट. सो ये बर्थ सर्टिफिकेट में अगर आपने एनरोल किया, अगर आपने वो रजिस्ट्रेशन किया तो आपको फ़ी पे करनी है. अगर मैरिज हुआ है तो मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आपने फ़ी पे की तो फिर आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा. मीन्स आपको वो यूटिलिटी, वो सर्विस अगर यूटिलाइज करनी है तो ही आपको वो फ़ी पे करनी होगी. सो एजुकेशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी और बाकी सभी जो सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, अगर वो सर्विस आप कंज्यूम करोगे देन ओनली यू हैव टू पे द फीस. सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम टैक्स. सो द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट नॉन टैक्स रेवेन्यू इज़ फीस. Next one is prices of public goods and services. Modern governments sell various types of commodities and services to the citizens. A price is a payment made by the citizens to the government for the goods and services sold to them. So मॉडर्न गवर्नमेंट, द रोल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो मॉडर्न टाइम में चेंज हुआ है एंड टुडेज गवर्नमेंट रोल इज़ वेलफेयर स्टेट. सो वेलफेयर स्टेट मीन्स व्हाट कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को सिटीज़न को वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और इसलिए गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को अलग अलग कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है. ये सर्विसेज के बदले में गवर्नमेंट कुछ पेमेंट लेती है. वो पेमेंट इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू. फॉर एग्जाम्पल रेलवे फेयर्स. रेलवे इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिक एंटरप्राइज कि पब्लिक इंडिया में रेलवे की जो सर्विसेज है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड, अभी तक गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है और इसलिए रेलवे के जो फेयर्स है, रेलवे का जो इनकम है वो गवर्नमेंट का नॉन टैक्स इनकम है. पोस्टल चार्जेस की पोस्ट सर्विसेज जो है वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है और ये जो पोस्टल चार्जेस है कि आप पोस्ट करते हो या फिर स्पीड पोस्ट करते हो तो फिर ये जो चार्जेस आप पोस्टल ऑफिस में पे करते हो वो चार्जेस गवर्नमेंट का इनकम है. उसके साथ साथ बाकी कुछ कमोडिटीज़ जैसे कि कोई गवर्नमेंट की इंडस्ट्री है और वो इंडस्ट्री से कुछ कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन होता है. जैसे कि पहले मारुति इंडस्ट्री जो है वो फुल्ली गवर्नमेंट एंटरप्राइज थी लेकिन उसका प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे हो रहा है. सो ऐसे कुछ गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज़ है कि जिससे गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है तो फिर वो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए सिटीजन्स पे करते हैं. दैट इज़ the revenue of government. So prices of public goods and services. Public goods means what? Goods provided by government. So government ये goods and services जो provide करती है उसकी price, उसकी value means government income है. Next one is special assessment. The payment made by the citizens of a particular locality in the exchange for certain special facilities given to them by the authorities is known as special assessment. स्पेशल ट्रीटमेंट जैसे होता है कि जैसे कि एक स्पेसिफिक एरिया के लिए गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा चार्जेस प्रोवाइड करती है. वो चार्जेस ज़्यादा चार्जेस लेती है. वो चार्जेस क्यों लेती है? क्योंकि वो स्पेसिफिक एरिया में कुछ एडिशनल फैसिलिटीज़ सिटीजन कंज्यूम करते हैं. फॉर एग्जांपल लोकल बॉडीज़ कैन लेवी अ स्पेशल टैक्स
on the residents of particular area where extra special facilities of roads, energy, water supply etc. are provided. So एक specific area में ये जो सभी फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल है और इसलिए लोकल गवर्नमेंट और लोकल बॉडी वो स्पेसिफिक एरिया से एक्स्ट्रा चार्जेस ले सकती हैं. जैसे कि आप देखोगे रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में जो टैक्स है वो टैक्स डिफरेंट है. प्रॉपर्टी टैक्स हो या फिर जो दूसरे टैक्स है, तो फिर ये जो टैक्स है ये टैक्स अर्बन एरियाज़ में लोग ज़्यादा क्यों देते हैं? क्योंकि वो अर्बन एरियाज़ में उनको रोड फैसिलिटी, एनर्जी, वाटर सप्लाई ये सभी फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल है. कंपेयर टू अर्बन एरियाज़, रूरल एरियाज़ में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है और इसलिए रूरल एरियाज़ में ये सभी टैक्सेस जो है वो कम है. सो दैट इज़ स्पेशल असेसमेंट. सो ऐसे एक स्पेसिफिक एरियाज़ में जैसे कि मुंबई जैसे सिटी में प्रॉपर्टी टैक्स ज़्यादा है, तो ऐसे जो टैक्स है कि एक स्पेसिफिक एरिया में एक स्पेशल फैसिलिटीज़ है और इसलिए ये फैसिलिटीज़ कंज्यूम करने के बदले में आपको ज़्यादा टैक्स पे करना है या फिर ज़्यादा पेमेंट गवर्नमेंट को देना है. दैट इज़ अ स्पेशल असेसमेंट. नेक्स्ट वन इज़ फाइन्स एंड पेनल्टीज़. The government imposes fines and penalties on those who violate the laws of the country. The objective of the imposition of fines and penalties is not to earn income but to discourage the citizens from violating the laws framed by the government. So fines and penalties is one of the important non-tax revenue. फाइन्स नॉर्मली कि फाइन एंड पेनल्टीज़ कब पे करने हैं? जब हम कोई भी गवर्नमेंट का रूल ब्रेक करते हैं. तो फिर वो कि रेलवे में विदाउट टिकट ट्रैवल करना, टीसी ने अगर आपको पकड़ा तो आपको फ़ाइन देना है. हाँ, ट्रैफिक के रूल अगर आपने ब्रेक किए तो आपको ट्रैफिक पुलिस को चार्ज मीन्स फ़ाइन और पेनल्टी देनी है. तो ऐसे जो फाइन्स एंड पेनल्टीज़ है वो भी गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू है. अभी ये फाइन्स एंड पेनल्टीज़ गवर्नमेंट क्यों लेती है? इनकम अर्न करने के लिए नहीं, तो फिर ये जो रूल्स है और जो रेगुलेशंस है वो सिटीजन्स ने फॉलो करने चाहिए. और इसलिए कि ये अगर आप ब्रेक करते हो तो फिर आप फ़ाइन भरो. फ़ाइन मीन्स इनकम के लिए यहाँ पे फाइन्स एंड पेनल्टीज़ नहीं है, बट लोगों ने, सिटीजन्स ने ये रूल्स जो है वो फॉलो करने चाहिए और इसलिए गवर्नमेंट फाइन्स एंड पेनल्टीज़ लेती है. So the objective of the imposition of fines and penalties is not to earn income but to discourage the citizen from violating the laws framed by the government. So the income from this source is very small. Got it? So fines for violating traffic rules, without ticket traveling, ये सभी जो है वो fines and penalties का example हैं. So fines and penalties in one more non-tax revenue. Next one is gifts, grants and donations. The government may also earn some income in the form of gifts by the citizens and others. So the government also earns some income from gifts by the citizens and others. Citizens means कि कोई citizen है और बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है और फिर वो गवर्नमेंट को वो गिफ्ट प्रोवाइड कर सकता है. द गवर्नमेंट में ऑल्सो रिसीव ग्रांट्स फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर जनरल एंड स्पेसिफिक पर्पस. सो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरेन गवर्नमेंट से कुछ ग्रांट्स मिल सकती है. फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक जैसे जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को ऐसे ग्रांट्स प्रोवाइड करती है अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स के लिए. सो ये भी एक फॉरेन गवर्नमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशन से गवर्नमेंट को ग्रांट्स अवेलेबल हो सकती है. Foreign aid has become an important source of development finance for a developing country like India. So foreign aid जैसे कि वर्ल्ड बैंक है तो फिर वर्ल्ड बैंक इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को वेलफेयर स्कीम्स के लिए फंड अवेलेबल करके देती है. और ये जो फॉरेन एड है ये फॉरेन एड एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है डेवलपिंग कंट्रीज़ का और इंडियन गवर्नमेंट को भी ऐसे फॉरेन एड से हेल्प मिलती है. दिस सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज़ अनसर्टन इन नेचर.
सो दिस इज़ नॉट सर्टन, मीन्स कि एवरी टाइम आपको एड मिलेगा या फिर हेल्प मिलेगी, ग्रांट मिलेगा, ऐसे कोई भी सर्टेनिटी नहीं है। क्योंकि कि जब वर्ल्ड बैंक चाहती है या फिर जब वो इंटरनेशनल लेवल पे अगर उनको डेवलपिंग कंट्रीज़ में कुछ चेंजेस चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो ही वो ऐसे ग्रांट और गिफ्ट्स और डोनेशंस देंगे। सो गिफ्ट, ग्रांट्स एंड डोनेशन, दिस सोर्स इज अनसर्टन इन नेचर, बट दिस इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ गवर्नमेंट्स इनकम। नेक्स्ट वन इज स्पेशल लेवीज. This is levied on those commodities the consumption of which is harmful to the health and well-being of the citizen. So कि जो कमोडिटी सिटीजन्स के लिए, जो कमोडिटी का कंजम्पशन हार्मफुल है हेल्थ के लिए या फिर एनवायरनमेंट के लिए, तो फिर वो कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन के ऊपर या फिर वो कमोडिटीज़ का कंजम्पशन कम हो, इसलिए गवर्नमेंट वो कमोडिटीज़ के ऊपर स्पेशल टैक्स इम्पोज करती है, दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल लेवीज. लाइक फाइन्स एंड पेनल्टीज, द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न इनकम. लाइक फाइन्स एंड पेनल्टीज, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल लेवीज इज नॉट टू अर्न इनकम बट टू डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल कमोडिटीज़ बाय द सिटीजन्स. कि फाइन्स एंड पेनल्टी की जैसे इनकम अर्न करना ये स्पेशल लेवीज का एम नहीं है. लोगों को ये कमोडिटीज़ के कंजम्पशन से डिस्करेज करना ये इसका मेन एम है, क्योंकि ये कमोडिटीज़ जो है वो हार्मफुल है. फॉर एग्जांपल ड्यूटीज़ लेविड ऑन वाइन्स एंड ओपियम एंड इंटॉक्सिकेंट्स. गॉट इट. सो ये इसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है. गॉट इट. फिर भी लोग उसका कंजम्पशन करते हैं, और इसलिए कि ये इसका टैक्स लगाने से उसकी प्राइस इंक्रीज होगी और उसकी डिमांड डिक्रीज होगी. लोग ये कमोडिटी का कंजम्पशन करने से डिस्करेज होंगे, इसलिए गवर्नमेंट ये कमोडिटीज़ के ऊपर कुछ ज़्यादा टैक्स लगाती है. जैसे कि दिवाली जैसे फेस्टिवल में क्रैकर्स जो है वो क्रैकर्स का भी कि एनवायरनमेंट, क्रैकर से एनवायरमेंटल लॉस होता है, और इसलिए गवर्नमेंट ये क्रैकर्स के ऊपर भी स्पेशल टैक्सेस लगाती है. सो स्पेशल लेवीज इज़ वन ऑफ द नॉन टैक्स रेवेन्यू. एंड नेक्स्ट वन इज बोरोविंग. The government can borrow from the people in the form of deposits, bonds, etc. So government can borrow the money from the citizens. It also gets loan from the foreign governments and organizations such as IMF and World Bank. सी स्टूडेंट्स की गवर्नमेंट को जब इनकम की ज़रूरत है तब गवर्नमेंट लोगों से डिपॉजिट्स ले सकती है या फिर बॉन्ड्स जो है वो मार्केट में सेल कर सकती है. जैसे कि कुछ डेवलपमेंटल प्लान है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत है. ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट, जैसे कि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स सेल करती है, वैसे गवर्नमेंट वो प्रोजेक्ट के बॉन्ड्स सेल करते हैं. ये बॉन्ड्स सिटीजन परचेज करते हैं और उससे गवर्नमेंट को इनकम मिलता है. बट दिस इज़ बोरोविंग. गवर्नमेंट ने लोगों से बोरो किया है. जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, जब इसे अर्निंग स्टार्ट होगा, तब गवर्नमेंट को ये बॉन्ड्स का जो भी वैल्यू है वो वैल्यू सिटीजन्स को पे करनी है. So deposits and bonds is one type of borrowing. So it also gets loan from foreign government like International Monetary Fund, IMF, World Bank. So ये जो foreign organizations है, ये foreign organizations developmental schemes के लिए लोन भी प्रोवाइड करती है. जैसे कि गिफ्ट, ग्रांट एंड डोनेशन देते हैं, वैसे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन भी प्रोवाइड करते हैं. सो बोरोइंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट और फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन is also one of the source of government's income. Loans are becoming more and more popular source of revenue for the government in the modern times. So कि फाइन्स एंड पेनल्टीज, स्पेशल असेसमेंट, हाँ, या फिर फीस, इससे गवर्नमेंट को ज़्यादा इनकम नहीं मिलता है. और इसलिए कि मॉडर्न टाइम में जो गवर्नमेंट का रोल है वो इंक्रीज़ हो रहा है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो रहा है, और इसलिए गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू की ज़रूरत है. और इसलिए गवर्नमेंट मॉडर्न टाइम्स में फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेती है या फिर बॉन्ड्स शेयर करते हैं. सो लोन इज़ मोर पॉपुलर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. सो बोरोविंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नॉन टैक्स रेवेन्यू. Students, here we discuss various sources of non-tax revenue. First one is we discuss fees,
Next one is prices of public goods and services, special assessment, fines and penalties, gift, grants and donations, special levies and borrowing. So these are the sources of non-tax revenue. I hope you understood the sources of non-tax revenue. Students, here we completed the second component of public finance. So in the structure of public finance we discussed total there are 5 components: public expenditure, public revenue, public debt, fiscal policy and financial administration. In that we discussed or we completed public expenditure and public revenue. Got it? So public revenue, there are 2 sources of public revenue: tax revenue and non-tax revenue. Tax revenue, there are 2 types of taxes: direct taxes and indirect taxes. There are many sources or many types of direct taxes and indirect taxes. And then we discuss in today's session various sources of non-tax revenue. So students, here we completed the second component of public finance, that is public revenue. So students, write down these various sources of non-tax revenue in your economics notebook. I hope you understood the various sources of non-tax revenue. Thank you.